ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شرع خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا۔ آپ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کیا اور فرمایا، مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل میں پڑھا درود شریف، حاجتیں سب رواں ہوئی اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف۔ ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین حیدر قرار صاحب ذوالفقار حسنین کریمین کے والد بزرگوار حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شرع خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بہت محبت کرتا تھا۔ شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو رواں ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن القواس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابن القواس نے پوچھا، تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا، امیر المومنین و یاسب المسلمین و موجب بطول کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے۔ ابن القواس نے حیرت سے کہا، انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو؟ غلام نے کہا، میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی، کپڑا ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہیں تھا۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی خوفناک طغیانی آئی، یعنی طوفان آیا کہ سیلاب سے تمام کھیتیاں غرقاب ہو گئی، یعنی ڈوب گئی۔ لوگوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شرع خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہیں بے کس پناہ میں فریاد کی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ مبارکہ و امامہ مقدسہ و چادر مبارکہ جیب تن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر کئی حضرات بھی ہمراہ چل پڑے۔ فرات کے کنارے آپ کرم اللہ وجہہ الکریم نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر پل پر تشریف لا کر اپنے عصا سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی 1 گز کم ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو مزید 1 گز کم ہوا۔ جب تیسری بار اشارہ کیا تو 3 گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے التجا کی، یا امیر المومنین بس کیجئے، یہی کافی ہے۔ مقام صفین جاتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شرع خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا۔ اس کے راہب نے بتایا کہ یہاں سے 2 فرسخ یعنی تقریباً 14 کلومیٹر
के फासले पर पानी मिल सकेगा। कुछ हजरात ने वहाँ जाकर पानी पीने की इजाज़त तलब की। ये सुनकर आप करमल्लाहु तआला वजहुल करीम अपने खच्चर पर सवार हो गए और एक जगह की तरफ इशारा करके खोदने का हुक्म फरमाया। खुदाई शुरू हुई, एक पत्थर ज़ाहिर हुआ, उसे निकालने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई। ये देखकर मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम सवारी से उतरे और दोनों हाथों की उंगलियां उस पत्थर की दरार में डालकर जोड़ लगाया तो वो पत्थर निकल पड़ा और उसके नीचे से एक निहायत साफ़ व शफ़ाफ और शीरी यानी मीठे पानी का चश्मा उबल पड़ा और तमाम लश्कर उससे सैराब हो गया। लोगों ने अपने जानवरों को भी पिलाया और मशकीज़े भी भर लिए। फिर आप करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने वो पत्थर उसकी जगह पर रख दिया। गिरजा घर का ईसाई राहिब यह करामत देखकर मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की खिदमत में अर्ज़ गुज़ार हुआ, क्या आप नबी हैं? फरमाया नहीं। पूछा, क्या आप फरिश्ते हैं? फरमाया नहीं। फिर उसने कहा, फिर आप कौन हैं? फरमाया, मैं पैगम्बर मुरसल हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ और मुझको ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद बातों की वसीयत भी फरमाई है। इतना सुनते ही वो ईसाई राहिब कालिमा शरीफ पढ़कर मुशर्रफ व इस्लाम हो गया। आप करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फरमाया, तुमने इतनी मुद्दत तक इस्लाम क्यों कबूल नहीं किया था? राहिब ने कहा, हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि इस गिरजा घर के करीब पानी का एक चश्मा पोशीदा है। इस चश्मे को वही शख्स ज़ाहिर करेगा जो नबी होगा या नबी का सहाबी। चुनांचे मैं और मुझसे पहले बहुत से राहिब इस गिरजा घर में इसीलिए इंतज़ार में मुकीम रहे। आज आप करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने ये चश्मा ज़ाहिर कर दिया तो मेरी मुराद बर आई, इसलिए मैंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया। राहिब का बयान सुनकर शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम रो पड़े और इस कदर रोए कि रिश मुबारक आंसुओं से तर हो गई। फिर इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह कि इन लोगों की किताबों में भी मेरा ज़िक्र है। यह राहिब मुसलमान होकर आप करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के खादिमों और मुजाहिदों में शामिल हो गया और शामियों से जंग करते हुए शहीद हो गया और मौला मुश्किल कुशा ने अपने दस्ते मुबारक से उसे दफन दिया और उसके लिए मगफिरत की दुआ फरमाई। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम अपने दोनों शहजादों हज़रत सैयदना इमाम हसन व इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के साथ हरम काबा में हाजिर थे कि देखा वहाँ एक शख्स खूब रो रो कर अपनी हाजत के लिए दुआ मांग रहा है। आप करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने हुक्म दिया कि इस शख्स को मेरे पास लाओ। इस शख्स की एक करवट चूँकि फालिस ज़दा थी लिहाजा ज़मीन पर घिसटता हुआ हाजिर हुआ। आप करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने उसका वाक़या दरियाफ़त फरमाया तो उसने अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, मैं गुनाहों से मुआमले में निहायत बेबाक था। मेरे वालिद मोहतरम जो कि एक नेक व साले मुसलमान थे मुझे बार बार टोकते और गुनाहों से रोकते थे। एक दिन वालिद माजिद की नसीहत से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस पर हाथ उठा दिया। मेरी मार खाकर वो रंजो गम में डूबे हुए हरम काबा में आए और उन्होंने मेरे लिए बद्दुआ कर दी। उस दुआ के असर से अचानक मेरी एक करवट पर फालिज का हमला हो गया और मैं ज़मीन पर घिसट कर चलने लगा। इस गैबी सज़ा से मुझे बड़ी इबरत हासिल हुई और मैंने रो रो कर वालिद मोहतरम से माफ़ी मांगी। उन्होंने शफ़क़त पिदरी से मग़लूब होकर मुझ पर रहम खाया और माफ़ कर दिया। फिर फरमाया, बेटा चल, मैंने जहाँ तेरे लिए बद्दुआ की थी वहीं अब तेरे लिए सेहत की दुआ मांगूंगा। चुनांचे हम बाप बेटे ऊँटनी पर सवार होकर के
मक्का मुअज़्ज़मा आ रहे थे कि रास्ते में यकायक ऊँटनी बिदक कर भागने लगी और मेरे वालिद माजिद उसकी पीठ पर से गिरकर दो चट्टानों के दरमियान वफ़ात पा गए। अब मैं अकेला ही हरम काबा में हाजिर होकर दिन रात रो रो कर खुदा ताला से अपनी तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगता रहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को उसकी दस्तान इबरत निसा सुनकर उस पर बड़ा रहम आया और फरमाया, ऐ शख्स, अगर वाकई तुम्हारे वालिद साहब तुमसे राज़ी हो गए थे तो इत्मीनान रखो, इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। फिर आप करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने चंद रकत नमाज पढ़कर उसके लिए दुआ सेहत की। फिर फरमाया, कुम, यानी खड़ा हो। यह सुनते ही वह बिला तकल्लुफ़ उठकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। अबू जाफ़र नामी एक शख्स कूफा में रहता था। लेन देन के मामले में वह हर एक के साथ हुस्न सलूक से पेश आता था। बिलखुसूस औलाद अली का कोई फ़र्द उसके यहाँ कुछ ख़रीदारी करता तो वह जितनी भी कम कीमत अदा करता कबूल कर लेता, वरना हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के नाम कर्ज लिख देता। गर्दिश दौरा के बाइस वो मुफलिस हो गया। एक दिन वो घर के दरवाजे पर बैठा था कि एक आदमी उधर से गुजरा और उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे बारे मकरूज़ यानी हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने कर्जा अदा किया या नहीं? उसको इस तंज का सख्त सदमा हुआ। रात जब सोया तो ख्वाब में जनाब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से शर्फ़याब हुआ। हसनैन करीमैन यानी हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी हमराह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहजादगान से दरियाफ़्त किया, तुम्हारे वालिद साहिब का क्या हाल है? हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने पीछे से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। इरशाद हुआ, क्या वजह है कि इसका हक़ अदा नहीं करते? उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं रकम हमराह लाया हूँ। फरमाया, इसके हवाले कर दो। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने एक ऊनी थैली उसके हवाले कर दी और फरमाया, ये तुम्हारा हक़ है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे वसूल कर लो और इसके बाद भी इनकी औलाद में से जो कर्ज लेने आए उसको महरूम न लौटाना। आज के बाद तुम्हें फ़क्र फाका और मुफलिसी और तंगदस्ती की शिकायत नहीं होगी। जब बेदार हुआ तो वो थैली उसके हाथ में थी। उसने अपनी बीवी को बुलाकर कहा, ये तो बताओ कि मैं सोया हुआ हूँ या जाग रहा हूँ? उसने कहा, आप जाग रहे हैं। वो खुशी के मारे फूला नहीं समाता था। सारा किस्सा अपनी जौज़ाए मोहतरमा से बयान किया। जब मकरूज़ों की फहरिस्त देखी तो उसमें से हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के नाम ज़र्रा भर कर्ज बाकी नहीं था, यानी कि फहरिस्त से वो तमाम लिखा हुआ कर्जा साफ़ हो चुका था।